بڑے بڑے خواب قتل کر دیے اس جملے نے. بوتھی دیکھیے تو اپنی, اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی. کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے. انکا قادر الی ربک قدحا فملاقی. ایون اللہ سے یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف. لوگوں کے اوپر انگلیاں مت اٹھا. یو آر ریسپانسبل فار یور اون میس. تو آج اگر ہم کہیں ہیں اللہ کی قدرت برکت کے بعد تو یہ ہمارے فیصلے ہیں. مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو, وہ سوچ ہی کیا جسے ناقدین نصیب نہ ہو, وہ درد ہی کیا جو لوگوں کی دہلیز پہ منوا لیا جائے, وہ عشق ہی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بھی کافی سفر کر کے آئے ہیں, تھکے ہوئے بھی ہوں گے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو مجھے بھی سننا کسی کو بہت مشکل گوارا ہوتا. اینڈ اٹس اے ہارڈ تھنگ ٹو لسن ٹو سم ون. میں آپ کی کیفیت سے واقف ہوں. شاید آپ بور ہو رہے ہوں گے. تسی بھی کہو گے کہڑے مولوی نو بلا لیا تسی ایتھے گل کرن واسطے. کچھ کہہ رہے ہوں گے بھائی کام کی بات کرو اور پھر چلتے بنو. تو میں ان کیفیات سے واقف ہوں اور کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن میں یہاں اپنے لیے نہیں آیا ہوں. میری زندگی کی جنگیں میری, آپ کی زندگی آپ کی. ایک لحاظ سے ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں. وی آر اے پارٹ آف ایچ ادر. لیکن زندگی کے بڑے بڑے مقاموں کے اوپر بڑے بڑے سرداروں کو زندگی کے اندر ہر جہت میں, ہر رستے پر, ہر عمر میں کچھ ایسی گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, مشورہ کریں اپنے لوگوں کے ساتھ اے میرے حبیب. talk to the counsel that Allah has given you. اور ایک اور آیت بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے نا, ایک چیز کو بار بار سننا, بار بار سننا, بار بار ریپیٹڈلی سننا, تنفع للمؤمنین, از بینیفیشل فار دا بلیورز. یہ کنڈیاں کھولتی ہیں انسان کے ذہن کی. ایک چیز کو میں نے اگر سنا ہے 20 سال کی عمر میں, میرا اس کے بارے میں پرسپیکٹیو کچھ اور تھا. وہی چیز میں نے 25 سال کی عمر میں جب سنی ہے تو کیونکہ میرا سپین, میرا مائنڈ, میرا ذہن, میری جنگیں, میری وسعت, میرا تدبر, میرا تذکر, میرا تفکر مختلف گرائنڈنگ اور مختلف چکیوں سے پس چکا ہوا تھا, تو میں نے اسے مختلف پرسپیکٹیو سے سنا, سمجھا. 30 کے بعد 35 کے بعد وہی باتیں کچھ اور کھول جاتی ہیں. تو بہت آسان ہے, باتوں کو اٹھا کے پھینکنا بھی بہت آسان ہے. اور انسان عربی میں نسیان سے آیا, مین, جس کا مطلب ہے مین کمز فرام دا ورڈ فرگیٹفلنس. ہم کچھ نہ بھی چاہیں تو یہ تقریریں بھول جائیں گے. میں بھی جانتا ہوں کہ 60% حصہ جتنا بھی گرم کر دوں میں پنڈال کو یہاں پر, 60-70% حصہ کسی کو یاد نہیں رہے گا. لیکن میں اپنے مدعے پہ آنے سے پہلے یہ جو ظاہر بیٹھا میں نا, اس سے بات نہیں کر رہا. I'm not talking to the external you. وہ جو اندر چھپی ہوئی روح ہے نا, وہ جو اندر چھپا ہوا ہے, التی فی الصدور, that heart that is beating inside your chest, وہ جو اندر چھپا ہوا انسان ہے آپ کے. میں تو آج اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں. اس مہینے تو میرا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, کونڈا ہی ہو گیا ہے. ایک جگہ میں پشاور میں تھا, اس کے کچھ دنوں بعد میرا سیالکوٹ سیشن تھا, ابھی سعید آباد نپٹا کے آئے ہیں. وہ ٹی وی کہندی ہے بھائی کار آ جا, گھر آ جا, کتنے کما دے اندر لگ گیا تو 16 سال قوم کی خدمت میں ہی مار لیے. تو چلیں کچھ نہیں, ایک ماں کا لال پھر اگر ضائع ہو گیا تو کیا ہوا, قوم تو کھڑی ہو جائے گی اس کے اوپر. تو میں یہ سارے مسالہ جو ایڈ کر رہا ہوں تمہید میں, وہ یہ ہے میں آپ کے لیے آیا ہوں بھائی جان. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ عطا ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو, کچھ لوگ. میں یہ بات کا کہیں بھی قائل نہیں ہوں کہ میرے سے بڑے جن نہیں بیٹھے ہوں گے یہاں پر, میرے سے بڑے قداور لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے, یہ میرا کبھی بھی مقدمہ نہیں تھا. ہاں ہم یہ کہتے ہیں سینے کے اندر پلتے ہوئے تجربے کو لفظوں کا لباس پہنانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے
लफ्जों को वो कलाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, जज्बों को वो इजहार बख्शने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशां बख्शने के लिए, एक कली को एक गुलिस्तां बख्शने के लिए, एक अबर को वो बहार बख्शने के लिए बड़ी काट काटनी पड़ती है, बड़ा दम चाहिए, बड़ा कच चाहिए अपने सीने की बात को बयान करने के लिए। इसलिए शायद हमें बुला लिया जाता है। आता हमें कुछ ज्यादा नहीं है कि वो चीजें जो बयान करने का उसका जो उस बयान का हक है, शायद वो बुझती हुई किसी शमा के अंदर वो आग लगा दे। शायद वो कदम जो साहिल पे खड़े हुए फैसलों में और तजर्रा और तवक्कुफ के बीच में कहीं मौकूफ है, उसको एक धक्का और दे दे। इसलिए तो कहते हैं कितने ही ख्वाब हैं, कितने ही फलसफे हैं, कितनी ही फिक्र है, वो साहिल पे ही दम तोड़ गए। और वो काश अगर मगर चूंके चुनाचे की बहस में चाय के ढाबों पे ही मिलेंगे आपको जिंदगी में। फिर कुछ लोग हैं, इल्ला कलीला, अ फ्यू ऑफ देम, जो जिंदगी के समंदर के अंदर कदम बढ़ाता है। इफ्स एंड बट्स की दुनिया से निकल के, काश अगर की दुनिया से निकल के इनिशिएटिव लेता है, फैसले करता है जिंदगी। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन। जिंदगी फैसले का ही तो नाम है। आज आप जहां हैं ये भी एक फैसला है, कल आप जहां होंगे ये भी एक फैसला होगा। पानी रास्ता नहीं बना सका, ये आपका फैसला है और मेरा फैसला है। वो जर्रा एक पहाड़ ना बन सका, ये भी आपका फैसला है और मेरा फैसला है। ब्लेम गेम क्या खेलना। इसलिए कुरान का तरक्की के सफर का पहला उसूल यही है, फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। लोगों के ऊपर उंगलियां मत उठा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मैस। तो आज अगर हम कहीं हैं अल्लाह की कुदरत बरकत के बाद, तो ये हमारे फैसले हैं। कल भी कहीं होंगे तो ये हमारे ही फैसले होंगे। वो नजरिया एक जिस्म ना बन सका, ये भी हमारा ही फैसला है। तो कुछ लोग और कितने साहिल पे ही मर गए। और हमने देखे 40 साल की जिंदगियों में लोग मिले, बहुत लोग मिले, मगर वो काश अगर मगर साहिल पे बैठे हुए फलसफे, किताबी बातें ही थी जिंदगी में उनकी। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, दे वर ऑल अबाउट थ्योरेटिक्स, मगर प्रैक्टिकलिटी नाम की चीज नहीं थी। और ठीक है, महफिल को गर्म करने के लिए किताबी ताबीरें भी होनी चाहिए। फिर कुछ थे जिन्होंने समंदरों के अंदर फैसले किए, जिंदगी में कुछ कदम बढ़ाए आगे, लेकिन कुछ उसूलों की कमी थी, कुछ ग्राइंडिंग्स की कमी थी, कुछ तदबीरों की कमी थी, कुछ नक्स थे, कुछ तनकीस थी, जिसकी वजह से समंदर ने जब अपना बल हिलाया तो वो भगोड़े भाग के फिर साहिल पे ही आ गए। और फिर क्योंकि ये मसला था और चूंकि ये मसला था, तो जिंदगी आज अगर कहीं फंसी भी है बीच में, फैसले के बाद जो ले चुके हैं, ये भी एक फैसला खड़ा है आपके सामने, आप भी एक फैसला है अपने सामने। तो अगर वो कहीं अटका हुआ है इस टाइम पर, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि समझी नहीं जा सकती, उसके पीछे उसूल हैं जिसकी वजह से मसला नहीं हो रहा सही। और कुछ लोग मकामों में कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ मंजिलें मिल जाती हैं, रस्तों को मंजिलें अता कर जाते हैं वो, और मंजिलों को भी रास्ते अता कर जाते हैं। तो कुछ लोग अगर कहीं पहुंचे हुए हैं तो उनका मसला ये है कि आगे कैसे जाएं। कुछ लोगों की भूख मिट जाती है कहीं पहुंच के, खुद तो पहुंच जाते हैं, कौम थका के पहुंच जाते हैं। टीम मैनेजमेंट के इतने मसले मिलेंगे, खुद तो पहुंच गया, पूरी टीम ही थका दी उसने। खुद तो पहुंच गया, शक शुबहात पूरी कौम में डाल गया। तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं मगर काफिला नहीं पहुंचा पाते। काफिला पहुंचाते हैं तो असासे जाया कर देते हैं, असासे जमा करते हैं तो मार्केट के अंदर अपना नाम खराब कर जाते हैं। मार्केट के नाम को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं तो दोस्तियां, दुश्मन दोस्त और दोस्त सज्जन नहीं बना पाते। कहां पर, किस महल में, किस जगह में, किस वजह में, किस कता में, किस जमान में, किस मकान में बात करनी है और फैसले करने हैं, वो वल टूट जाता है उनका,
भूख मर जाती है लोगों की, और वो कहते हैं हम इसी पर ही कायल हैं, हम इधर ही ठीक हैं, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात जो मैंने देखा है कल से, व्हाट आई हैव सीन सिंस यस्टरडे, ये तो पेपरों के ऊपर ही मर जाना चाहिए था इसको। ये तो कागजों के ऊपर ही ऐसे ख्वाब खत्म हो जाते हैं कितनों के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलां करेंगे। बड़ी बात है, ये सफर काट गया वहां से। मी एज अ क्रिटिकल एनालिसिस फॉर ऑल द डेवलपर्स इन द एंटायर सिस्टम दैट आर वर्किंग, मेरी पहली बात ही बड़ी बात है कि कागज से निकलने का फैसला किया कुछ लोगों ने जो बैठे हैं यहां पर, बड़ी बात है जी। मगर जैसे बजा लीजिएगा तालियां, मैं करता हूं, अभी तालियों का भी वक्त आएगा, बात को सुने। बड़ी बात है कि फैसले निकल के मैदान में आ गए, बड़ी बात है जी, इसी पे कुर्बान। और बड़ी बात है कि उस फैसले को लोग मिल गए, क्योंकि जिंदगी एक मुश्किल सफर है। इन्ना का कादिरुन इला रब्बी का कदन फबला की, इवन अल्लाह से ये बड़ी मुश्किल काट है लाइफ। किसी भी जिहत में, किसी भी जगह पर सफर होता ही मुश्किल। ये जिंदगी वैसे ही ऊपर से एबे तु मिन्हा जमिया, वैसे ही निकाले गए हैं जन्नतों से। लाइफ इज हार्ड, जिंदगी एक सख्त काट है। इस जिस्म को किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए, नजरिए को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए, सोच को किसी जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत काट काटनी पड़ती है इंसान को, बहुत। तो ये बड़ी इमेच्योर बचकाना सोच होती है कि आदमी किसी चीज को देख के बोले हाँ फाइन, नहीं, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने कुछ जिंदगी में बनाया होता है वो कुछ बनी हुई चीज को जाहिर से नहीं, बातिन से देखते हैं कि यार कितना कितना कुछ लगा होगा थोड़ा कुछ खड़ा करने के लिए। तो बड़ी बात है कि इसने सिलसिला काटा, पहुंचा चलते फिरते, मगर वो सोच ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे नाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे हासिदीन नसीब ना हो, वो ख्वाब ही क्या जिसे हाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे गैर नहीं अपने बैठ के कह रहे होते हैं। हमारे पंजाबी में एक जुमला है जो बड़ा कातिल है ख्वाबों का जी, बड़े बड़े ख्वाब कत्ल करती है इस जुमले ने। बूथी देखिए तो अपनी, इसने बड़े बड़े ड्रीमर्स को तबाह कर दिया जी। बंदा आके कहना जी मैं करना चाहना, ये जुमला जो हमारा है ना, बूथी देखिए तो अपनी। तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया उसके रद के अंदर। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू एज वेल। अगर ऐ उंगली तुसी किसी दे अगे तनकीद कर रहे हो ना, तीन उंगलियां ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ भी आंदी। साडे वालियां ने फिर चार कट के क्या, फिर बूथी वेख जाके तू अपनी। तो वो जिंदगी क्या जब तनकीदे ना हो, कमर तोड़ने वाले जुमले ना हो, सीने पे तीर और कमरों पे वो नेज़ों की वो बरसात ना हो, ऐसी सफर, एक ऐसी जिंदगी जिसको दुश्मनी नहीं मिला, ये भी माठा है। और ऐसा सफर जिसको सबकी ताईद मिल गई, ये भी माठा है। सफर की शुरुआत में हमेशा नेगेटिविटी होगी आपके बारे में। ये तारीख है इनकलाब की कि जब भी वो शुरू हुआ लोग शक शुभात और तरद्दुद में ही मिलते हैं उसको, तो शुरू में हाथ नहीं मिलता किसी को। वो जिंदगी क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में, ये तो बेवफाइयों का सफर है सरकार, ये तो गुमनामियों का। एक फलसफे को जिस्म बनने के लिए कितनी साल गुमनामियां काटनी पड़ती। 40 साल हमारा नबी दुनिया के सामने ज़हूर होने, 40 साल दुनिया से वो देखें कहां है। और फिर 36 की उम्र में गारों के अंदर चला गया वो इमाम जिसने कायनात का रुख बदलना था आगे। तो ये आइसोलेशन, ये गुमनामियां, ये तन्हाइयां, ये तो मिराज है लीडर्स की। ये तो हमेशा से उनकी शान रही है कि उनके बराबर वाले नहीं पहचान सके कि इसमें कितना दम था। वो पोटेंशियली क्या जिसे बराबर वाला पहचान जाए, वो जिगर कलेजा ही क्या जिसे अपने गले लगा लें, वो दर्द ही क्या जो लोगों की दहलीज पे मनवा लिया जाए, वो इश्क ही क्या जो शुरुआत में कमाल तक पहुंच जाए। ये तो बेवफाइयों का सफर है। क्योंकि अगर 4 कदम आपके और मेरे बढ़ गए आगे, तो उनका झूठ जो उन्होंने अपने अंदर मारा हुआ होता है, जब वक्त की हसासियत और तकाजा उनको कह रहा था कि फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, क़यादत का, इमामत का, फिर सबक पढ़, खड़ा कर अपने आप को।
the life of a slave from a life of a slave to a life of a master. उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारता है, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए। उन्हें डर होता है कि हमने तो 20 साल लगाए अपने अंदर की आवाज को मारने में, ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका। इसलिए वो तनकीद आती है, बिकॉज पीपल आर स्कैर्ड।